آپ دیکھ رہے ہیں 9 روز ٹی وی انٹرنیشنل. سب کو محبت برا سلام. ناظرین، انگلینڈ کے جو حالات ہے سب کو پتہ ہے کہ پٹرول کی جو پرابلم چلی ہوئی ہے، لوگ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا. ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے اس پہ گہری نظر ہے ان کی حالات پہ. ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس پہ گورنمنٹ کنٹرول کر لے گی، کیا حالات ہوں گے آنے والے دنوں میں. چلتے ان کے پاس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ کیا ہو گیا؟ ایک ترقی یافتہ ملک میں پٹرول کا مسئلہ بن گیا تو غریب ممالک میں پھر کیا ہوگا؟ بس جی یہ حکومت کی برطانوی حکومت کی نااہلی ہے. انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہوئی ہے مگر یہ معاملہ ان کے قابو سے باہر ہے. ان کو سمجھا رہے تھے یہ لوگ، مطلب یہاں آ رہا تھا کہ یہ آپ جب EU میں یہ بریکسٹ جب ہوا ہے تو ان کے ڈرائیورز شارٹ ہو گئے، تو یہ مختلف کمپنیاں یہاں شو ڈال کے بیٹھی تھیں کہ بھی ڈرائیور کم ہے، آپ ڈرائیور کا انتظام کریں. انہوں نے پہلے کہا تھا ہم کوئی ویزا نکالیں گے، وہ ویزا آج کل میں اب بہت برے حالات ہو گئے تو اب کہتے ہیں اب ویزے کا یہ کچھ کریں گے، مگر وہ تو بہت دیر ہو گئی ہے تو ابھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ ہیں کتنے دن تک برداشت کر سکیں گے کہ لائنوں میں لگیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پیٹرول اسٹیشن بھی بند ہے، تو یہ کتنے دن تک آپ کے خیال میں اور برقرار رہے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیں یہ سارا مسئلہ ہے مس مینجمنٹ. ایسی بات نہیں ہے کہ پیٹرول نہیں ہے یا پیٹرول ختم ہو گیا. پیٹرول ہے، وہ ان کی جو ریفائنریز ہیں یا ان کے جو گودام ہیں وہاں پیٹرول ہے. یہ بات نہیں کہ اس ملک میں پیٹرول ختم ہو گیا. مسئلہ یہ کہ وہ پہنچائے گا پمپوں پہ کون. مصیبت ان کی یہ ہو گئی ہے یا بدقسمتی یا بدنصیبی کہ وہ ڈرائیورز ان کے کم پڑ گئے. گاڑیاں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 90,000 ڈرائیور اس ملک میں چاہیے. وہ 5,000 ڈرائیور یہ یورپ سے لانا چاہ رہے ہیں. ان کا ویزا آج کل کرے، وہ 1 مہینے سے وہ ویزے نکلوائیں گے. تو اس وجہ سے اس وقت گاڑیاں ہیں، پیٹرول بھی ہے، پر اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. تو 90% اس وقت جتنے بھی پیٹرول پمپ اس ملک کے برطانیہ کے اس وقت وہ ہو گئے ہیں بند. اب لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں. اور جو ایک عجیب و غریب واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ گوروں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے سمجھدار اور بڑے سسٹمیٹک ٹیکنیکل بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں. جتنی دہشت کی فضا گوروں نے خود پیدا کی، ہم لوگ خود ان کو دیکھ کے ڈر گئے ہیں. آپ پیٹرول پمپوں پہ دیکھیں تو گورے گوریاں 5-5 10-10 کنستر بھرتے ہیں پیٹرول. گاڑی بھی فل کرتے ہیں 5-5 10-10 کنستر، جبکہ پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ 30 پاؤنڈ سے زیادہ یا 30 لیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کے باوجود وہ دہشت کی فضا گوروں نے بنا دی جیسے یہ پیٹرول نہیں ہوگی زندگی ہو گئی. جو عجیب و غریب بات ہے. بھائی ٹھیک ہے پیٹرول نہیں ہے تو آپ کم کریں. جیسے میں نے بھی پیٹرول، ٹھیک ہے پیٹرول نہیں تھا، میں نے ٹینک فل کرا کے اب میں بڑا کم چلتا ہوں. اشد ضرورت ہوتی تبھی میں گاڑی نکالتا ہوں، یا نہیں ہوتی تو پھر میں نہیں کر میں ٹرین میں جاؤں گا، بس میں جاؤں گا. مجھے پتہ ہے پورے ملک میں ایک مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے. تو ہر آدمی کو احتیاط. اگر آپ UK میں سو گاڑیاں دیکھیں، یہ ہمیں وہ جس طرح فروری مارچ 2020 میں جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت گاڑیاں کم ہو گئی تھی. ابھی بھی آپ روڈوں پہ دیکھیں گاڑیاں بہت زیادہ کم ہو گئی. ہر آدمی جو سمجھدار ہے وہ صرف اپنے کام کی وجہ سے باہر جا رہا ہے، یا اشد ضرورت کوئی بھی نہیں جا رہا. 90% لوگ اس وقت لوگ جو ہیں 90% تو نہیں مگر کافی بڑی تعداد اس وقت برطانیہ میں لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں. 1-2 لوگوں سے صبح ہی بات ہوئی، کہتے ہیں ہم تو گھر سے نہیں نکل رہے کیونکہ پیٹرول کا مسئلہ ہے. یعنی کل کو ایمبولینس کی ضرورت ہو گئی، کل کو کوئی بیمار ہو گیا، کچھ پرابلم ہو تو اس کو اسپتال پہنچانا، کچھ بھی بھاگ دوڑ، تو پیٹرول ہونا چاہیے. اچھا، یہ یورپ والوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے ڈرائیور نہیں یہاں بھیجیں گے، ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے. تو یورپ نے کیوں اس طرح ان کا ساتھ یہ جو سلوک ہے شروع کر دی؟ اصل میں انہوں نے امیگریشن میں بڑی سختی کی. مسئلہ ادھر یہ تھا کہ یورپینز کافی آنا چاہ رہے تھے، پر فروری 2020 سے نیشنل انشورنس نمبرز جو ادھر ایشو ہوتے تھے وہ بند تھے. اس وجہ سے نئے یورپین آتا وہ نیشنل انشورنس نمبر نہیں ہوتا، وہ رجسٹریشن کرواتے. خیر وکلاء حضرات جو تھے وہ رجسٹریشن EU سیٹلمنٹ اور یہ سیٹلمنٹ اسکیمیں تھیں جو وکلاء کو پتہ ہے، ہم لوگ تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو لیگل وہ ہوتے ہیں. وکلاء کروا رہے تھے. مگر اس میں یہ ہوا کہ یورپ سے ان کو یہ ڈرائیور لینے چاہیے تھے. انہوں نے 30 جون کی بات تو ایسا وہ کر دیا کہ جو ادھر ہے ادھر رہ گیا، جو ادھر ہے ادھر ہو گیا. وہ پاکستان انڈیا والا کام ہو گیا کہ بھئی یہ بس لائن آف کنٹرول ہے، جس نے ادھر سے ادھر وہ ادھر سے ادھر بس وہی وہ فائر ہوگا. تو وہی کام انہوں نے یورپ کے ساتھ کر دیا. وہ لوگ ناراض ہو گئے. اب ڈرائیوروں کی شارٹیج ہے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ڈرائیوروں کو انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال ویزے نکالیں گے. اب وہ ویزے جب نکلیں گے، ٹھیک ہے آج انہوں نے ویزے نکال دیے تو ڈرائیور تو آج سے نہیں آئے گا، کیونکہ ڈرائیور کا یہ ہوگا، ڈرائیور کا دیکھیں پہلے فار ایگزامپل وہ ایک جرمنی میں، رومانیہ، بلغاریہ یا
वहाँ का कोई ड्राइवर है, क्वालिफाइड ड्राइवर है, वो इधर पहले इंटरव्यू देगा, फिर उसके रेफरेंस चेक होंगे, फिर उसका पुलिस चेक होगा, उसको फिर वो जहाँ वो काम करता था पहले वहाँ से वो रेफरेंसेस लेंगे, उसका काम देखेगा, उसको ट्रायल देंगे। उसके बाद ये तो नहीं कि मैं एक यूरोपियन हूँ, आज अगर मुझे आज इन्होंने टेस्को सेंसबरी के ट्रक पे चढ़ा दिया कि भाई तुम ये चलाते रहो, वो तो पूरे 1 महीना 2 माह 3 माह की स्टेप्स होंगी। ये भी तो नहीं है, वो तो ट्रक तो आपको बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, खुदा न खास्ता गलत हाथों में चला जाए तो एक्सीडेंट कर दे। तो ये इतना जल्दी ये गैप पूरा नहीं होगा। अब ये कहते हैं फौज आएगी, अब फौज आएगी नहीं आएगी, मगर इन्होंने एक नया सिस्टम डाला है। इनका ये था कि इधर एक कंपटीशन कमीशन इनका था, वो ये करता था कि सेंसबरी, टेस्को, शेल, जो भी ये बड़े बड़े पेट्रोल के वो हैं पंपों वाले, इनको कहते हैं कि आप डेटा आपस में शेयर नहीं करेंगे, आप अपना अलग रखेंगे कि वो मुकाबला हो जाए, जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इन्होंने कहा कि आप ड्राइवर स्विच कर सकते, शेल वाला टेस्को को दे सकते, टेस्को शेल को। इन्होंने कुछ आर्जी तौर पे वो रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। अच्छा, यूरोप के ड्राइवर ये कह रहे कौन वहां से छोड़ के आता 3 माह के लिए इनके लिए काम बहुत मुश्किल है। देखिए अब बहुत मुश्किल है, वही मैंने आपसे बात की कि अगर फॉर एग्जांपल मैं रोमानिया बल्गारिया का ड्राइवर हूँ, मुझे आज जॉब ऑफर होती भी है, मुझे 15-20 दिन 1 महीना लगेगा वो वहाँ से अपना सारा कुछ समेट कर फिर 5 माह 6 माह के लाऊंगा, उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊँगा। तो बेहतर है मैं अपने रोमानिया बल्गारिया जो भी मेरा मुल्क है, यूरोपियन मुल्क है, जर्मनी है, हॉलैंड में वहाँ रहूँ, मुझे क्या ज़रूरत है आने की। अच्छा, ये भी लोग देखेंगे कि 3 माह का ये वीज़ा देंगे, 3 या 4-5 माह के लिए आएंगे लोग। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मुश्किल है, लोग ये फैसला नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये मसला बड़ा सीरियस है। असल में इनको बहुत पहले से सोचना चाहिए था। ये जो टेस्को सेंसबरी वाले ये बहुत पहले से हुकूमत को ख़बरदार कर रहे थे कि हमारे पास शॉर्टेज हो गई है, ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई है। असल में इसमें कुछ और भी मसाइल हैं। हमारे बहुत अर्सा पहले मेरी 1-2 लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी थी। ये ऑयल टैंकर माफिया, जिस तरह पाकिस्तान में पठानों का होल्ड होता है, ये ऑयल टैंकरों पे इधर भी, वो मुझे एक दोस्त मिले तो उन्होंने कहा कि यहाँ खालिस गोरे लोगों का ऑयल टैंकर माफिया पे राज है, बदमाशी है। वो 60,000 से 80,000 पाउंड सालाना उनकी तनख्वाह होती है ऑयल टैंकरों के ड्राइवरों की, वो सारे गोरे। इन्होंने कभी एशियन को अंदर आने नहीं दिया। जिस तरह यहाँ हम यूके में देखते हैं, ये लंदन में जो TFL है, TFL में जो ये ट्रेन के ड्राइवर है, ये भी 60,000 80,000। आप बहुत कम है कोई एशियन ये ट्रेन का ड्राइवर देखेंगे, सारे गोरे माफियों ने दबाए हुए हैं कि बस वो हो, कोई और ना हो। तो वही मसला हुआ है कि पेट्रोलियम के जो ये फील्ड थी, ये इतनी मुश्किल इन्होंने कर दी थी। फॉर एग्जांपल कोई हमारे एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली, वो अगर ये ऑयल टैंकर ड्राइवर बनना भी चाह रहा था, उसके लिए इतने बड़े टेस्ट, इतने बड़े इन्होंने वो एहतमाम रखे हुए थे कि एंट्री इतनी मुश्किल कर दी थी। गोल्ड, जिस तरह ब्लैक कैब हम देखते हैं लंदन का, जैसे ब्लैक कैब है, वो अभी भी आप देखें तो पूरे वो सेंट्रल लंदन का आपको हिफ्स करना होता है। भाई आजकल GPS का दौर है, आप खुद वो टैक्सी ड्राइवरों को देखें जो ब्लैक कैब वाले सेंट्रल लंदन अपने पास GPS लगा के बैठे, तो कहाँ गया वो जो उन्होंने कहा कि आपको हिफ्स करके आपको टेस्ट पास करके आना चाहिए। पुराना जो मेयर था केन लिविंगस्टन, उसने तो कहा था यार ये टेस्ट मैच का टंटा खत्म करो, सबको GPS दिला दो, बस ठीक है, क्या जरूरत है ये एक रोड को हिफाजत करने की। अच्छा, ये बड़ी बात आपने की कि ये भी वही इनकी सोच है कि अभी तक पता नहीं हम पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकते हैं, मगर दुनिया तेज़ होगी मेरा ख्याल है। अब ये वक्त बदल गया है ना, तो ये टैक्सी ड्राइवर के लिए जी जाके टेस्ट दो, ये करो वो करो, ये सोच इनको क्यों नहीं ये अपनी तब्दील कर। सर इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त हालात बड़े ख़तरनाक और क्रिटिकल है। जो अफसोस की बात यह है कि अच्छा एक काम आप लोग ना करें, वो बड़ा ख़तरनाक है, वो धमाका उससे आग लग सकती है। आप लोग कभी भी ये पेट्रोल जमा करके घर पे ना रखें, ये हम खास तौर पे सबको बताना चाह रहे हैं। ये मुझे नहीं पता इस मुल्क में जुर्म है या नहीं है, मगर आप पेट्रोल किसी भी कीमत पे जमा करके घर पे या गाड़ी में ना रखें। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, बच्चों ने कोई तीली जला दी, पूरा घर भग से उड़ जाएगा। बड़े ख़तरनाक हालात हैं। अगर पेट्रोल आपने लेना है तो आपको पेट्रोल गाड़ी में फुल करा दें। कभी भी गाड़ी में, घर में पेट्रोल, क्योंकि कभी ये भी हो सकता है कि आपने पेट्रोल भरवा लिया, वो 5 लीटर या 10 लीटर के घर में कहीं रख दिया, आप भूल गए, ये मसला हल हो जाता है। 7-6 माह बाद कोई बच्चा खेलने गया, कोई और गया, कुछ हुआ, आपने बारबेक्यू किया, कुछ किया, आपने बाहर अपने गैराज में रखोगे, बारबेक्यू किया, वहाँ से वो चिंगारी की डज बस। अब तो वो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोई भी शख्स पेट्रोल जमा ना करे, ना घर पे रखे, गाड़ी में जो है बस वही रखे। और हाँ, अगर पेट्रोल, अभी जो एक और मसला ये आ रहा है कि पहले इन्होंने कहा था कि पेट्रोल जो था उधर होता था, ये मोटरवेज पे था, अब वहाँ भी नहीं है, मोटरवेज पे भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पेट्रोल 1 पाउंड 35 पेंस पर लीटर था, वो 157 पेंस का 157, वो 20 पैनी बढ़ भी गया, उसके बावजूद पेट्रोल नहीं है। 90% पेट्रोल पंप खाली। इसके अब ये आपके ख्याल में ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस पे कोई इसका असर पड़ेगा? कोई उनको है इस चीज़ का ख्याल? सर वो प्रीति पटेल की नाअहली है, प्रीति पटेल को उन्होंने डाला हुआ है बस वो उसमें कि मैं ये यूरोपियन इमिग्रेंट्स रोक दूँ, वो किश्तियों में वो जो आते हैं बॉर्डर पे, उसको किस तरह तो उस पर तवज्जो, उसको कई दफ़ा उसके कान
लोगों ने वो किए कि भाई ये मसाइल आ रहे हैं, तुम ये ड्राइवरों को बंदोबस्त करो, और ये ड्राइवर का बंदोबस्त आज से नहीं, ये कोई 6 माह से ये कंपनियां चीख रही थी कि हमारे पास शॉर्टेज आ गई है। अब देखें सेंसबरी टेस्को की जो बड़ी बड़ी ओल्ड कंटेनर उनके ड्राइवर थे, पर ड्राइवर उनके शॉर्ट हो गए। वो या तो पूरा यूके ठेकेदारी सिस्टम पे चलता है, कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, ड्राइवर कभी भी ये उम्र ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होती, कोई पेंशन वेंशन के चक्कर होते, कोई खर्चा नहीं करना चाहते, तो कहती बेहतर है मैं 50-60 हज़ार वो एजेंसी को दे दूं, बस उस पर वो ड्राइवर चलता रहे। तो ड्राइवर ही नहीं है तो अब क्या करें। ये अपॉर्चुनिटी हमारे एशियंस के लिए खुल सकती है, पर मसला हमारे एशियन के अंग्रेजी इतनी नहीं आती, तो वो अगर एशियन ड्राइवर को भी इधर लाते हैं, वो टाइम लगेगा, वो समझेगा, तो वो ये मसला इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। एशियन की बात आपने की, सबसे पहले तो ड्राइविंग जो उनके पास लाइसेंस है वो ही मुसीबत है कि वो चेक करने पड़ेंगे असली है या नकली, ये भी तो इशू है ना वहाँ पे। हाँ, इसका ये यूरोप से लाएंगे, इधर हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया से ले आए, ऑस्ट्रेलिया से ले आए, अमेरिका कनाडा से कुछ लोगों को ले आए, पर वो मुश्किल होगा। ये इतना, ये मसले का हल इतना, मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी अगर भरवा सकते हैं तो भरवा लें, और फिर आप घर पर ही रखें, और अशद जब ज़रूरत होगी वो, जैसे कुछ दिन पहले कल परसों हमारा था कि बर्मिंघम जाएं, तो फिर मैंने यही सोचा कि बर्मिंघम चला तो जाऊंगा, वहाँ अगर पेट्रोल नहीं मिला तो वापसी में, तो फिर कहाँ मैं वहाँ पेट्रोल ढूंढता रहूँगा, तो मैंने बर्मिंघम छोड़ दिया। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, जब ये पेट्रोल का मसला फिर जाऊँगा। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है सिर्फ वो सफ़र करें जो अशद ज़रूरी है, तो उस गाड़ी पे, ट्रेनों बसों में जाएं, पर अशद ज़रूरी अगर नहीं है तो आप घर पर ही रहें और एहतियात करें। अच्छा, आपके ख्याल में यूरोप वाले इनका तमाशा देख रहे होंगे? इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। यूरोप देखिए, ये बड़े कनेक्टेड मुल्क रहे, हो सकता है यूरोप इनको इमरजेंसी भी 100-200-500 ड्राइवर हर मुल्क इनको आर्जी 2-3 माह के लिए दे दे, और सरकारी या जिस तरह वो कहते हैं फौज आज हो सकते हैं वो जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, उनकी फौज से 100 ड्राइवर ये पकड़ लें आर्जी तौर पे कि यार हमें ड्राइवर 3-3 माह के लिए दे दो। हो सकता है ऐसे काम हो जाए, वहाँ से ड्राइवर आ जाए। अच्छा, एक मेरा जो ज़ाती ख्याल, मैंने प्रोग्राम किया था कि कोरोना आ गया था तो इनको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था यूरोपीय यूनियन से कि हालात ख़राब हो गए, तो 1-2 साल बढ़ा सकते। इन्होंने ये भी एक गलती की आपके ख्याल में? हाँ, इनको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए थी ये, क्योंकि काफ़ी लोग यूरोपियंस आना चाहिए, इधर नेशनल इंश्योरेंस नंबर के मसले थे, इधर कोरोना के कारोबार नहीं थे, तो काफ़ी लोग जो आना चाहते तो वो नहीं आ सके, और जो चले गए तो अब वो आएंगे नहीं। तो इसमें बड़े ये जो गरीब से मसाले, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब पे रहम करे। हमारी तो ये उम्मीद है, ये देखिए अच्छा मुल्क है, हम इधर रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, बड़े एशियंस पाकिस्तानियों को ये बहुत बड़ा मुल्क है, लोगों के बड़े बड़े दिल हैं इनके। हम तो टोनी ब्लेयर को दुआएं देते हैं। टोनी ब्लेयर है जो हमें इस मुल्क में लाया था, उसने इमिग्रेशन खोली थी। टोनी ब्लेयर जैसा इनका लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ, वो इतना बेहतरीन आदमी था, उसी ने इमिग्रेशन खोल के सब एशियंस को इधर लाया था। हम तो टोनी के ताहयात वोटर भी हैं। तो बस ये मसला ये है कि ये वो आजकल होता किधर है टोनी ब्लेयर इस वक्त जो है वो रिटायर्ड आदमी है, वो आई थिंक वो मिडल ईस्ट के एनवॉय, उसकी बीवी वकील है। पाकिस्तान की काफ़ी जो केसेस यहाँ कोर्टों में होते हैं, उसकी बीवी बैरिस्टर है, वो चेरी ब्लेयर के नाम से पाकिस्तान की काफ़ी केसेस लड़ती रहती है। अच्छा है, मतलब अल्लाह खैर करे। अच्छा खासा, अल्लाह तो खैर करे, मगर आपके ख्याल में ये अवाम कितने दिन तक परेशानी बर्दाश्त कर सकते? देखिए, हम लोग जो परेशान हैं, गोरों की वो दहशत देख के परेशान हुए। गोरों की दहशत ये है कि वो 5-5, 10-10 कंटेनर वो भर रहे हैं, तो वो घोड़ों को हमने खुद देखा है। हमारा एशियन पाकिस्तानी जाता है तो वो चले 30 पाउंड 40 पाउंड का घोड़ा जो 10-10 कंटेनर भरे, उसको देखा हम और डर गए, जैसे पता नहीं क्या हो गया, पेट्रोल नहीं होगा, कल नहीं होगा। ठीक है, पेट्रोल हो सकता है ना हो, पर ऐसे भी तो कोई क़यामत है, मुल्क तो चल रहा है। ठीक है, अगर पेट्रोल नहीं, अब गाड़ी पे नहीं, तो जैसे लोग घर से काम कर रहे हैं तो लोग नहीं, लेकिन एक नफ्सियाती तौर पे तो ये प्रॉब्लम है ना कि ये चीज़ ख़त्म हो रही, पकड़ लो। नहीं, सब्र से काम करना चाहिए। देखिए, अब ये नहीं है, अब जैसे मैं भी हूँ, मैं भी अभी ट्रेन में जाते हैं, हम बस में जाते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल ना करें भाई। ये कुछ दिन ये मसला रहेगा, हो सकता है हफ्ता 10 दिन ये रहे, हो सकता है ज़्यादा। अच्छा, आप देख क्या रहे हैं इंग्लैंड के हालात आने वाले दिनों में? यूरोपीय यूनियन से ये अलहदा हो गया, यहाँ पे क्या है, महंगाई हो रही है। नहीं, महंगाई तो हो गई है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। खाने पीने की चीज़ें 20-30% बढ़ गई हैं। जैसे पिछले साल अगर आपको याद होने कहा था कि टिश्यूज़ ख़त्म हो गए, तो लाइनें लगी थी, टिश्यू ख़त्म हो गए थे। फिर पानी का मसला हुआ, वो जो मिनरल वाटर होता है सुपर स्टोर्स पे, वो गायब हो गया था। तो अब ये पेट्रोल का और हर रोज़ कोई ना कोई मसला होता है। बोरिस जॉनसन जो वज़ीर आज़म मोहतरम है, उनकी अभी वालिदा का इंतकाल भी हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो अब उसका सोयम चहलम कुल करा के फिर हो सकते हालात है, फिर वो देखे कि पेट्रोल कहाँ से लेना। अभी तो इमरान खान ने भी ताज़ियत की, हम सब लोग उनकी वालिदा की ताज़ियत करनी चाहिए। अब उसका सोयम तो हो गया, अभी चहलम भी उसका होगा, तो चहलम को भी देखना होगा कि उसमें क्या होता है। तो टर्किश है, तो वो फिर कुछ देगे भी पकेंगी, खाना भी होगा, क्योंकि ओरिजिन तो टर्किश है ना। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को? हमारा सबको यही पैगाम है कि आप हौसले से रहें। हम एक दुनिया के एक बेहतरीन मुल्क में रह रहे हैं। ये एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ये कोई मतलब वो सोमालिया या वो लीबिया नहीं है, ये एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री है।
یہ بڑے سیانے لوگ ہیں, گورا بڑی پلاننگ سے چلتا ہے, ٹھیک ہے تھوڑی مس کیلکولیشن مس مینجمنٹ ہوگی پر اس پہ قابو یہ پا لیں گے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, لوگ بھی ہیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کا یہ حل نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے یہ عارضی لوگوں کو یہ پریشانی ہوئی ہے مگر یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی. اور اچھا میں 35 سال ہو گئے مجھے یورپ میں, پہلی دفعہ 4:30 بجے اٹھ کے پیٹرول ڈلوانے گیا کہ ختم ہو گیا کہیں سے مل جائے, اور یہ دیکھ لیں گے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یورپ میں یہ حالات ہو سکتے ہیں. تو بہرحال حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. بڑا اچھا آپ نے ایک میسیج دیا کہ گھروں میں پیٹرول اکٹھا نہ کریں, کوئی ایسا وہ بہت خطرناک ہے, وہ حادثہ نہ پیش کریں, آ سکتا ہے, بالکل نہ کریں. اور بہتر یہ ہے کہ کم صبر کریں. صبر کریں اور کم سفر کریں. اشد ضرورت کے علاوہ آپ گاڑی نہ چلائیں, کیونکہ کوئی بیمار ہو کچھ ہو اس کا اسپتال پہنچانا ہو, کیونکہ ایمبولینسوں کو بھی مسئلہ ہو گیا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کو کون پہنچائے. اور فوج جو ہے یہ جناب سنبھال رہی ہے سارا کچھ, اور امید ہے کہ اگلے, میرا ذاتی خیال 2-4 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں. آپ کا سر بہت شکریہ جڑے رہے 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ.